شین الف زبر شا، پھر بولے صاد الف زبر صو، اور اس یا کا نام ہے یا مادہ. کیا نام؟ یا مادہ کو کتنا کھینچنا؟ ایک الف کے برابر. با یا زیر بی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں. مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں مرکبات، ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں. یہ دو چیز آ گئی نا. اب ہم آگے کی قاعدہ سمجھیں گے. چلیے. حرکات، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ حرکات کو اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. آج کا جو سبق ہے وہ مد ہے. کیا ہے؟ مد ہے. حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہے. میں آپ کو کل سمجھا چکا کہ اگر صرف زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے. صرف زبر ہو تو بولیے نا، صرف زبر ہو تو جلدی پڑھیں گے. اور اگر زبر کے ساتھ خالی الف ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. میں آپ کو سمجھا تھا کہ زبر ہے تو ہمیں دیکھنا، زبر ہے تو ہمیں کیا دیکھنا؟ خالی الف ہے. خالی الف ہے. چونکہ زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے. زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے. زبر کو کھینچنا ہے تو زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے. یہاں دیکھیے با کے اوپر زبر ہے، خالی الف بھی، تو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. دھیان دیجئے. با الف زبر با. پھر بولی زبر کے بعد اگر الف ہے ہم اس کے نام رکھے تھے الف مادہ. کیا نام؟ الف مادہ. با الف زبر با. پھر بولی یا الف زبر یا. پھر بولی نون الف زبر نا. پھر بولی تا الف زبر تا. پھر بولی سا الف زبر سا. پھر بولی دھیان دیجئے. سین الف زبر سا. پھر بولی شین الف زبر شا. پھر بولی صاد الف زبر صو. پھر بولی ضاد الف زبر ضو. پھر بولی طا الف زبر طا. پھر بولی ظا الف زبر ظا. پھر بولی عین الف زبر آ. پھر بولی غین الف زبر غو. پھر بولی فا الف زبر فا. پھر بولی قاف الف زبر قو. پھر بولی دھیان دیجئے لام الف زبر لا. پھر بولی کاف الف زبر کا. پھر بولی میم
अलिफ ज़बर मा, फिर बोले वाव अलिफ ज़बर वा, फिर बोले हमज़ा अलिफ ज़बर आ, फिर बोले और ये क्यों कि हमने इसको मिला दिया। एक चीज आई, जबर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए, उसका हम नाम क्या रखे थे? अलिफ मादा। क्या नाम रखे थे? अलिफ मादा। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, जेर को खींचना है तो जज़म वाला या चाहिए, जेर को खींचना है तो जज़म वाला, जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला। जेर है, जज़म वाला या है, तो हम क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। और इस या का नाम है या मादा। क्या नाम? या मादा को कितना खींचना? एक अलिफ के बराबर। बा या जेर बी, फिर बोले या जेर ई। यहाँ एक चीज जरा गौर कीजिए, यहाँ दो नुक्ते हैं, या की शक्ल नहीं है और यहाँ शक्ल है मगर नुक्ता। या इस तरह का एक हरफ है, अगर नीचे दो नुक्ता है तो वो या है। चूंकि नीचे दो नुक्ता सिर्फ या ही का होता, किसी और का नहीं, इसलिए या का दो नुक्ते का किसी के साथ कोई कंफ्यूज नहीं। और अगर ये शक्ल है तो या ही है, नुक्ते की कोई ज़रूरत। अगर शक्ल है तो उसको नुक्ते की ज़रूरत नहीं है, और अगर नुक्ते है तो शक्ल की ज़रूरत। ये सिर्फ या की बात है, किसी और की नहीं। या ज़ेरे ही, फिर बोले नून या ज़ेरे नी, फिर बोले ता या ज़ेरे थी, फिर बोले सा या ज़ेरे थी, फिर बोले सीन या ज़ेरे सी, फिर बोले शीन या ज़ेरे शी, फिर बोले सौद या ज़ेरे सी, फिर बोले ज़ाद या ज़ेरे ज़ी, फिर बोले ता या ज़ेरे ती, फिर बोले ग़ा या ज़ेरे ज़ी, फिर बोले आइन या ज़ेरे ई, दबा कर बोले ग़ैन या ज़ेरे ग़ी, ग़ैन या ज़ेरे ग़ी, फा या ज़ेरे फ़ी, क़ाफ़ या ज़ेरे क़ी, लाम या ज़ेरे ली, काफ या ज़ेरे की। इसको आपको जरा गौर करना कि ये क्या है, ये काफ है, वो किस तरह, उसको जरा समझिए। ये देखिए, ये क्या है? काफ है। इतना हिस्सा मिटाओ तो भी ये काफ है, और बीच में अगर हमने काट दिया तो ये ऊपर जो लंबा हिस्सा वो भी काफ का टुकड़ा है, और नीचे जो गोल हिस्सा वो भी काफ का टुकड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का हिस्सा लाम से मिलाएंगे तो लाम काफ हो जाएगा। ये जबर नहीं, वो काफ का वो हिस्सा, उस हिस्से को हम लाम में लगाया तो लाम क्या हो गया? काफ या ज़ेरे की। बोलिए बोलिए
میم یا زیر می واو یا زیر وی حمزہ یا زیر ای دو چیز ہو گئی. ہم تیسری چیز سمجھیں گے دو چیز ہو گئی. اب ہم تیسری چیز سمجھیں گے. ذرا غور کیجئے. میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے اور زیر کو کھینچنا تو جزم والا یا چاہیے. اب ہم دیکھیں گے پیش کو کھینچنا ہے تو جزم والا واو چاہیے. پیش کو کھینچنا ہے تو جزم والا واو چاہیے. پیش کو کھینچنا ہے تو اس کا ہم کیا نام رکھے تھے؟ واو مادہ. کیا نام؟ واو مادہ. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دیکھیے یہاں پیش بھی ہے جزم والا واو بھی ہے. با واو پیش بو. پھر بولے یا واو پیش یو. پھر بولے نون واو پیش نو. پھر بولے تا واو پیش تو. بولے سا واو پیش تو. بولے سین واو پیش سو. بولے شین واو پیش شو. بولے صاد واو پیش سو. بولے غاد واو پیش غو. بولے طا واو پیش تو. بولے ظا واو پیش زو. بولے عین واو پیش عو. بولے فا واو پیش فو. بولے قاف واو پیش قو. بولے لام واو پیش لو. بولے کاف واو پیش کو. بولے میم واو پیش مو. واو واو پیش او. پھر بولے حمزہ واو پیش او. پھر بولے ابھی عین کیسے ہو گئے؟ ہم نے ملا دی. یہ تین چیز ہے. زبر کے بعد خالی الف نام الف مادہ. زیر کے بعد جزم والا یا نام یا مادہ. پیش کے بعد جزم والا واو نام واو مادہ. الف مادہ یا مادہ واو مادہ. الف مادہ یا مادہ واو مادہ. کتنے چیز؟ تین. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کتنے ہو گئے؟ تین. ان 6 کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ان 6 کو ہم اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو کتنی چیزیں گئی؟ 9. کتنی چیز؟ 9. آج میں آپ کو ایک نیا سبق اور دوں گا. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. حرکات. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں حرکات. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں تنوین. تنوین تنوین. دو زبر
दो जेर, दो जबर दो जेर, दो पेश को कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। हरकत एक जबर एक जेर एक पेश को कहते हैं और तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। ये हरकत और तनवीन क्या है, इनमें फर्क क्या है, जरा आप समझिए। आपको याद होगा मैं आपको बताया था कि जबर के माना होता है अ, याद है और जेर के माना होता है ई, आपको याद है, और पेश के माना होता है उ, आपको याद है ना। जरा आसान तरीके से समझिए। ये जो जबर है ना, ये वो जबर है जिसके माना आ है। ये जो जेर है ना, ये वो जेर है जिसके माना ई है। ये जो पेश है ना, ये वो पेश है जिसके माना ऊ है। अब सवाल है इस जबर के माना अ, इस जेर के माना ई, इस पेश के माना ऊ। ये जो दूसरा जबर है, ये जो दूसरा जेर है और ये जो दूसरा पेश है, ये क्या है? वही तनवीन है। क्या है? वही तनवीन है। और तनवीन है मतलब तनहीद है मतलब वो ना है। क्या है? ना है। हम यहाँ देख रहे हैं जबर, वो जबर नहीं है, वो तनवीन है। वो जबर नहीं, क्या है वो तनवीन है। मतलब ये आ नहीं, क्या है बोलिए, वो ना है। आई बस समझ में, वो आ नहीं। पहला वाला जो जबर है वो जबर है, वो अ है। दूसरा वाला जबर वो जबर नहीं, वो तनवीन है मतलब वो ना है। इसी तरह जो पहला जेर है वो तो ई है और दूसरा जो जेर है वो तनवीन मतलब ना है। क्या है? वो ना है। और पहला जो पेश है वो ऊ है और दूसरा जो पेश है वो ना है। अगर जबर है तो पढ़ेंगे अ, दो जबर तो पढ़ेंगे अन। अगर जेर है तो पढ़ेंगे ई, दो जेर तो पढ़ेंगे इन। अगर पेश है तो पढ़ेंगे ऊ, दो पेश तो पढ़ेंगे उन। आइए बात समझ में। दो जबर अन, दो जेर दो पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, एक जबर आ, एक जेर ई, एक पेश ऊ, दो जबर दो जेर दो पेश। आपको बात समझ में नहीं आ रही? हम बोलते हैं दो जबर, लेकिन वो दो जबर नहीं, एक जबर है और एक नून है। एक जबर है, एक नून है। हम कहते हैं दो जेर, लेकिन दो जेर नहीं, एक जेर है और एक नून मतलब और एक जो कहते हैं हम दो पेश, एक तो पेश है और दूसरा वाला वो तनवीन है, उसमें न की आवाज आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन में नून साकिन छुपा होता, यानी जज़म वाला नून, यानी न की आवाज छुपी होती है। इसलिए हम कहते हैं हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। आपको बात समझ में आ रही? ये है हरकत और तनवीन में फर्क। अब जो कुल सबक है, उस कुल सबक को हम आपको समझाएंगे। जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। मुकम्मल आज तक का सबक है, आज तक का जो सबक है। हम क्लास शुरू किए कब? जुमेरात को। और आज कौन है? मंगल है। तो कितने दिन हो गए? जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, फिर मंगल। 6 दिन तक का सबक हम क्या समझे? जरा देख लीजिए, गौर से देखिए। अगर बा के ऊपर जबर है तो पढ़ेंगे बा, और अगर बा के ऊपर खड़ा जबर है तो पढ़ेंगे बा, और अगर जबर के साथ खाली अलिफ है तो पढ़ेंगे बा, और अगर बा के ऊपर दो जबर है तो पढ़ेंगे बा। ये कितनी चीज हो गई? 4। जबर है तो पढ़ेंगे बा, खड़ा जबर तो पढ़ेंगे बा, जबर के साथ अलिफ तो पढ़ेंगे बा, और जबर के साथ और एक जबर तो पढ़ेंगे बा। बिल्कुल इसी तरह जरा गौर कीजिए, बिल्कुल इसी तरह गौर कीजिए। बा के नीचे अगर जेर है तो पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। बा के नीचे
खड़ी जेर है तो पढ़ेंगे बी। और अगर बा के नीचे जेर हो साथ में जज़म वाला या हो तो भी पढ़ेंगे बी। और बा के नीचे अगर दो जेर है तो पढ़ेंगे बिन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बिन। दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज देख लीजिए, बा के ऊपर पेश है तो पढ़ेंगे बू। क्या पढ़ेंगे? बा के ऊपर उल्टा पेश है तो पढ़ेंगे बू। और बा के ऊपर पेश, बा के ऊपर पेश और साथ में जज़म वाला वाव तो पढ़ेंगे बू। और बा के ऊपर दो पेश है तो पढ़ेंगे बुन। कितनी चीज हो गई? 4 चीज। जबर है तो पढ़ेंगे बा, जबर खड़ा हो जाए तो, जबर के साथ अलिफ है तो, जबर के साथ और एक जबर तो बन, बा के नीचे जेर हो तो बी, जेर खड़ी हो तो, जेर के साथ जज़म वाला या तो, दो जेर है तो बी, पेश है तो पढ़ेंगे बू, उल्टा पेश है तो पढ़ेंगे पेश के साथ जज़म वाला वाव, और दो पेश है तो पढ़ेंगे। कितनी चीज हो गई? 4 चीज। जबर की 4 हालत, जेर की 4 हालत और पेश की भी 4 हालत है। आगे जो सबक रह गया ना वो है जज़म और तशदीद। क्या रह गया? जज़म और तशदीद। कल मैं आपको समझाऊंगा जज़म और तशदीद। जज़म है तो क्या करेंगे? मैं आपको बताया था कि जज़म के माना मिलाना, जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे एक बार, तशदीद को भी मिला के पढ़ेंगे मगर 2 बार, चूंकि तशदीद के माना डबल। बस इतनी बात कल हम आपको समझाएंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल कायदा हमारे सामने आ जाएगा। अब ये 6 दिन में हमारे सामने कायदा आ गया। आइंदा कल हम 4 अक्षर 4 हुरूफ और पढ़ेंगे और परसों इंशाल्लाह पूरे 29 हुरूफ को हम ख़त्म करेंगे। और फिर इंशाल्लाह आगे हम आपको समझाएंगे कि 29 हुरूफ के साथ ज़बर ज़ेर पेश जज़म तशदीद और ज़बर ज़ेर पेश जज़म और तशदीद, इन सब को लेकर हम कुरान किस तरह पढ़ेंगे और नेक्स्ट हफ्ते में आपको समझेंगे इंशाल्लाह। बस इतनी बात आपके जहन में होना चाहिए कि ज़बर की 4 हालत। कितने हालत? 4 हालत। सिर्फ ज़बर है तो पढ़ेंगे बा, खड़ा तो पढ़ेंगे बा, जबर के साथ अलिफ है तो पढ़ेंगे बा, 2 जबर है तो पढ़ेंगे बन, जेर है तो पढ़ेंगे बी, खड़ी तो पढ़ेंगे बी, जेर के साथ जज़म वाला पढ़ेंगे बी, 2 पेश है तो पढ़ेंगे बिन, पेश है तो पढ़ेंगे बू, उल्टा पेश तो पढ़ेंगे बू, पेश के साथ जज़म वाला वाव तो पढ़ेंगे बू, 2 पेश है तो पढ़ेंगे बुन। कल मैं आपको बताएंगे कि जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे एक बार और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल का सबक हम समझेंगे। चलिए आप किताब खोलिए, किताब खोलिए।